بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے۔ جب آپ نے نماز پڑھنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے گھوڑے سے فرمایا، اللہ عز و جل تمہیں برکت دے، جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہو جائیں اپنی جگہ سے مت ہٹنا، حرکت نہ کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ چنانچہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے، اس گھوڑے نے اپنے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دی۔ کیا آپ جانتے ہیں سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے اور انسان کے دماغ کی صحت اچھی ہوتی ہے؟ تحقیق کے مطابق کھڑے ہو کر پانی پینا کینسر کا سبب نہیں بنتا، البتہ یہ ہاضمے اور جوڑوں کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں میں بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے؟ ہمیشہ بہترین اور اچھی زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرنے کی عادت اپناؤ۔ کھانے کے بعد ترنت مت سوئیں، ورزش روزانہ کریں، کھانے کی روٹین سیٹ کریں اور ایک بار میں زیادہ نہ کھائیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا نہ صرف سنت کے خلاف ہے بلکہ یہ انسان کے گھٹنوں کو بھی بہت جلدی نکارا کر دیتا ہے۔ جب پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقتور بناتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ کوئی فقیر اگر دروازے پر آ جائے تو کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ مت لٹاؤ اور نہ اس پر غصہ ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں کبھی کمی نہ آئے اور رزق میں برکت ہو تو صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی اور کھانے کا اہتمام کیا کرو۔ خواب میں پانی دیکھنا رزق اور سکون کی نشانی ہے، مگر گندا پانی پریشانی کی علامت ہے۔ بستر گندا رکھنے سے جسمانی کمزوری اور روحانی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے، نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت کچھ دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے، اپنے ہاتھوں کا مساج کرو، اس سے خون کی روانی بہتر ہوگی، ڈپریشن اور پریشانی دور ہوگی۔ سر کے درمیان والی جگہ پر مسلسل دبانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ کھانے کے ساتھ اگر پانی پینا ہے تو کھانے سے پہلے پیو یا کھانے کے درمیان پیو، کھانے کے بعد ہرگز نہ پیو۔ زیادہ دیر جاگنے کی عادت انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ زیادہ بولنا کم عقلی ہے، آپ جتنا کم بولتے ہیں آپ کی باتوں کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے، جاہل لوگوں کی صحبت سے بچو۔ بدن کا خون صاف اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو تازہ نیم کے پتے لو، ان کو پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح روزانہ نہار میں اس پانی کو پیو۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر کھاؤ۔ اگر اپنا صبح کا ناشتہ زبردست کرو گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ سیب صبح کے وقت کھانا بہتر ہے اور رات کو نقصان دہ ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کے دوران کبھی بھی جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ کھانے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ مناسب نیند لینا جسم کی توانائی بحال کرنے اور دماغ کو آرام دینے کے لیے ضروری ہے۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتی ہو تو روزانہ ناشتے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ جو لوگ اکثر لیٹ کر کھاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ اگر زیادہ نیند آتی ہے تو دودھ میں الائچی ڈال کر پیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے پرسکون ماحول بنائیں تاکہ اچھی نیند حاصل ہو سکے۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں تاکہ معدہ اسے آسانی سے ہضم کر سکے۔ ایک ہفتے تک 3 انجیر کے دانے بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں اور پانی پئیں۔ ایسا کرنے سے بال بھی مضبوط اور گھنے ہوں گے اور بدن میں نیا خون بنے گا۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہو وہ ناشتے میں کدو کا استعمال ضرور کیا کریں۔
सुकून की नींद चाहती हो तो रात को काले अंगूर खाओ, आपको सुकून की नींद आएगी। जुबान पूरे जिस्म की इस्लाह की बुनियाद है। अपने राज अपने तक रखो, जब तक जुबान पर ना आए तुम उसके मालिक हो। जो भी दवाइयाँ जुबान को कड़वी लगने लग जाए तो जान लो कि उनके अंदर सेहत और खूबसूरती के हजारों ज़खायर मौजूद हैं। आपको जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। योगा करने से पेट की बीमारियों और शुगर से दूर रह सकते हैं। खाली पेट अंजीर खाने से खून की कमी 1 महीने में पूरी हो जाती है। मर्द या औरत की बार बार टांग में दर्द होना कैल्शियम या विटामिन डी की कमी, नसों की कमजोरी, खून की गर्दिश, ठीक ना होने, ज्यादा देर खड़े रहना या ज्यादा मेहनत करने की निशानी हो सकती है। अगर दर्द बार बार हो या बढ़ता जाए तो फौरन डॉक्टर से जांच करवाना बेहतर है। सर दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाएं और आधे घंटे के लिए दिमाग को हर किस्म की सोचो फिक्र से फारिग करने की कोशिश करें। अगर ज्यादा गुस्सा आने लगे तो कुछ पढ़ना शुरू कर दें या पानी पिए, गुस्सा कम हो जाएगा। नीम के पत्तों वाले पानी से नहाने से आप स्किन की सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे तो जान ले कि उसको अंदर से कोई खुफिया या बीमारी खा रही है। नाजरीन, सीने के दर्द की सूरत में गाजर का सालन रोटी के साथ खाना बेहतरीन है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर किसी का गला बैठ जाए वो सौंफ का दाना चूस ले, अल्लाह के रहम व करम से आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। नाश्ते में केला खाना पूरे दिन आपके मूड को बेहतर और खुशगवार रखेगा और आप मनफी सोच से बचे रहेंगे। हर दूसरे दिन अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां ताज़ा हवा के लिए जरूर खोलें। अपने घर में सूरह रहमान की तिलावत जरूर करें। आप खुद में और अपने घर में बेहतरी महसूस करेंगे। अगर पालक में पूरा नींबू डालकर खा लिया जाए या गाजर और नींबू को पकाकर खाया जाए तो जिंदगी भर खाने की नली साफ रहेगी। शेर जैसी ताकत हासिल करनी है तो ये चीजें जरूर खाएं: खजूर, काले चने और शलजम। हंसते वक्त आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये दिल के नर्म होने की अलामत है। जिन लोगों के नाक के बाल बड़े होते हैं वो बीमारियों में घिरे हो रहते हैं। जिन लोगों के दिलों में हसद की आग होती है उनकी उम्र कम हो जाती है। जरूरत से ज्यादा नींद लेने वाला इंसान उदास ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने, गर्दन और पूरे जिस्म के पट्टे मजबूत रहें, आसाब नसें ताकतवर रहे, यादाश्त अच्छी बनी रहे, नजर कमजोर ना हो और हर वक्त जिस्म में सुस्ती व ताजगी महसूस हो तो ये आजमा सकती हैं। 1 पाव बादाम, 1 छटाक सौंफ, आधा पाव जरशक और आधा पाव किशमिश लेकर इन्हें बिना पीसे अच्छी तरह मिला ले और किसी साफ डिब्बे में रख दे। फिर दिन भर अलग अलग वक्त पर थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसे खाते रहें। अगर इसे अच्छी खुराक यानी ग़िज़ा और सेहतमंद जिंदगी के साथ लिया जाए तो इंशाअल्लाह ये जिस्म को ताकत और सेहत देने में मददगार साबित हो सकता है। रात के वक्त पेट पर तकिया रखकर सोने से कब्ज से निजात मिल जाती है। कड़वे बादाम के तेल से घुटनों को मालिश करें, घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। वॉशरूम के फर्श से पीले धब्बे दूर करने हैं तो नीम गर्म पानी में सिरका डालकर साफ करें। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चावल और रोटी की मिकदार कम करके फलों की मिकदार को बढ़ा दें। रोजाना रात के वक्त अपने पट्टों की जैतून के तेल से मालिश करें, आपके पट्टे निहायत मजबूत हो जाएंगे। बार बार पेशाब तंग करता है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर पानी पियो, बार बार पेशाब आना तंग नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि चावल खिले खिले और हर दाना अलग अलग खूबसूरत हो तो 1 कप चावल के हिसाब से 1.5 कप पानी डालना चाहिए। हर वक्त गुस्से में रहने से न सिर्फ आपके आसाब मुतासिर होते हैं बल्कि आपकी जिल्द यानी स्किन भी मुतासिर होती है। जिस घर में रोजाना सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाए वहां जादू असर नहीं करता। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं, इससे पेट में पानी भर जाएगा और हाजमा खराब हो जाएगा। शहद और नमक मिलाकर दांत साफ करने से आपके दांत चमक जाएंगे। देसी घी खाओ, चने की दाल इस्तेमाल करो, ये पट्टों के लिए बेहतरीन चीजें हैं। सांस की तकलीफ का मसला हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश करो। बंदे के ज्यादा सोने की आदत बंदे की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त दिमाग तेज रहे और सुस्ती भी ना हो तो खाना कभी भी पेट भर कर मत खाएं।
पेशाब कतरा कतरा करके आता हो तो जान लो ये मैदा खराब होने की अलामत है। सर दर्द के अंदर पालक खाने से सर का दर्द शदीद बढ़ जाता है। अगर पाँव का दर्द ना जाता हो तो पाँव के अंगूठों के सरसों के तेल से मालिश करें, दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोपहर के वक्त सलाद का इस्तेमाल उम्र के अंदर इजाफा करता है। भैंस का दूध जिस्म को मोटा करता है, गाय का दूध पी लो जवानी आ जाएगी। रोजाना सुबह के वक्त 3 दाने अंजीर खा लेने से कभी भी हड्डियों की कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर नींद ना आने का मसला हो तो सोने से पहले पैरों के तलवों पर सरसों के तेल की मालिश करें, सुकून की नींद आएगी। जो लोग रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध पीते हैं, इनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। अगर हाथ या पांव सुन्न हो जाते हो तो रोजाना 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ कर पिया करें, यह शिकायत दूर हो जाएगी। जब भी सर में शदीद दर्द हो तो 1 चुटकी सफेद नमक जुबान पर रख लें, दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। रात के वक्त चावल खाने से परहेज करें क्योंकि ये मोटापे और जोड़ों के दर्द की बड़ी वजह बनती हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहती हैं तो निहार मुँह किशमिश खाया करो, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हमेशा जवान रहना चाहती हैं तो अजवाइन खाया करो। जिस्म की जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगा लो, छाले नहीं पड़ेंगे। सुबह उठते ही पेशाब आना किस चीज की अलामत हो सकती है? ज्यादा मामलों में ये बिल्कुल मामूली बात है। रात भर किडनी पेशाब बनाती रहती है, इसलिए सुबह उठकर पेशाब आना एक नेचुरल अमल है। अगर दर्द, जलन या बहुत ज्यादा बार हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। अगर मुंह में छाले हो या मसाने की कमजोरी हो तो तुख मलंगा का इस्तेमाल करें। अंडे खाने से मैदे का दर्द नहीं होता। अगर एलर्जी हो जाए तो फौरन दही में खीरा डालकर खाएं, हर किस्म की एलर्जी और खुजली खत्म हो जाएगी। जो लोग समझती हैं खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना हजम हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। कोल्ड ड्रिंक कभी फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान देती है। अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों याद रहे, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया।